और पास प्रेसिडेंट That was started first. It was established in 1902. That's the last. Nobody knew कि Indian Medical Association भी हो सकता है, तो अहमदाबाद में शुरू हो गया. And British times it was wonderfully started. Then the idea of having an Indian Medical Association again. So we always take pride in saying that. सबसे पहला ये स्टार्ट हुआ है Yes. इंडिया में. India. After that, the Indian Medical Association established. That is in 1938. हमारा 1902 में है. So it is 190 years old. बच्चों में दे. बीजेपी और लास्ट 29-30. बस तो आप बोलते ना तो मैं बाकी तो सबको बोल दूँ, इन्वाइट कर दूँ. अपने कैलेंडर पे डालना होता है ना, इसलिए डेट ठीक है वो दोनों मैंने मनीषा बन से बनवा के. ठीक है आप बोलते थे माइक पर से, मैं बाद में बता दूँगा. ठीक है. Actually, मैंने वो कार्डियोलॉजिस्ट की जो कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्होंने तो सेशन किया. Spiritual principles for doctors, for healing patient care, and most important, self-care. Nice 3 days experience. हाँ दोनों. एक सेकंड. One moment, please. Yeah. अंकित ने मौलिका है. Yes. Bhavishya Sahib Sadawa. Okay. Welcome. बंद कर. And full. मैं करो एक पिक्चर करते हैं. of this program, Mukesh Bhavisi sir,
to start this program. Good morning and Om Shanti to all. I request the President of our Rotary Club to start the meeting by calling the meeting to order. Meeting is called to order. वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर पर देखते हैं। रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद मैजेस्टी होय के अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन होय, Didi, we cannot imagine that a person of your stature is here with us. Give a big hand to we also have D.K. Sharda Didi with us. She's sitting in the center, senior most of the people here. D.K. Shivani Didi, D.K. Sharda Didi, President of the Ahmedabad Medical Association, Dr. Jitendra Shah, Secretary, Dr. Gargi, Dr. Dilip Bhai, Dr. Ankit Bhai, the coordinator, who is also DK, he is a follower. And the President of my Rotary Club of Ahmedabad Majesty, Dr. Bibula Mukesh Bavishi, Secretary C.A. Nayan Adhyago, all the members of the Rotary Club, members of the Ahmedabad Medical Association, and the guests. A gardener always knows કે કેવા seeds પસંદ કરવાના અને ક્યાં મૂકવાના. આજે આપણે શિવાની દીદી પાસેથી એ શીખવાનું છે કે આપણા જીવનના seeds છે એ આપણે ક્યાં મૂકવા અને કેવી રીતે પસંદ કરવા. મારે માઓ ઝેડુંગનું એક નાનકડું I just want to share a small experience of Mao Zedong, the president of China once. Mao said, when I was a child, he has written in his biography that when I was a child, I always saw my mother gardening, putting water into the plants. एक बार वो बाहर गई और कुछ दिनों के लिए बाहर गई तो माओ ने कहा कि मामा कोई बात नहीं, मैं सारा संभाल लूंगा. और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब वो लौटी, पानी वानी तो पिला रहे थे माओ, लेकिन सारा गार्डन सूख गया. तब माँ ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हो गया ये. तो जब पूरी इंक्वायरी हो गई उसके बाद पता चला कि माओ वाज वाटरिंग द फ्लावर्स एंड नॉट द रूट्स. सो हम लोग आज शायद इसी बात पे गौर करेंगे कि हमें हमारे our thoughts are our roots. दीदी तो यही कहती है, everything begins with a thought. ठीक है ना दीदी, isn't that right? So आजकल IPL चल रहा है तो हमारा आज भी ये IPL है, इंडियन पॉजिटिव लीग. You know the leader of the IPL today, and उनकी जो simplicity है वो बहुत ही infectious और effective है, so मुझे बहुत अच्छा लगा है. आपको हम 2006 में मिले थे जब आपका यहाँ एक सेशन नेहरू नगर के पास था, and I cannot forget the moment we met you. You had such a presence, you such an aura. So we are very very happy. आपके insights हैं वो अहमदाबादी भाषा में कहें तो $1 million के हैं. तो आप जो कहते हैं वो थॉट से ही शुरू होता है. मुझे ध्यान है कि तेंदुलकर और विनोद कांबली ये दोनों एक साथ और एक टीचर के पास ही ट्रेन हुए थे. दोनों क्रिकेटर, बोथ टैलेंटेड. उनको जितना इंफॉर्मेशन मिला उस इंफॉर्मेशन का दोनों ने अलग अलग इस्तेमाल किया. आज तेंदुलकर एक जगह पर है और विनोद कांबली एक जगह पर है. बहुत ही शॉर्ट में कहूँगा कि मधुमक्खी कभी गंदगी पर बैठती नहीं है. इट्स अ चॉइस शी मेक्स. सो मे बी वी कैन चूज टू मेक a choice and make a difference in our lives. शिवानी दीदी रोटरी इंटरनेशनल 118 साल पुरानी संस्था है और हमारी क्लब है वो 18 साल पुरानी संस्था. और मैं आपको बता दूं कि आज रोटरी इंटरनेशनल ने अपनी पहला प्रेसिडेंट वुमन प्रेसिडेंट चुना और हमने भी हमारे क्लब में पहला प्रेसिडेंट वुमन प्रेसिडेंट चुना. Women are agents of change and we'll see that so much here. And with that I wish to thank you for coming and also thank Sharda Didi for
managing Shivani Didi to come with us. We begin with a small welcome with a bouquet and shawl, and I request Dr. Jitendra Shah and myself to give a bouquet to Shivani Didi. अच्छे ले लेंगे और आपका ही शॉल से स्वागत करने के लिए रोटरी प्रेसिडेंट डॉक्टर विदुला बाविशी और एएनएस सेक्रेटरी डॉक्टर गार्गी पटेल को मैं विदुला शॉल और शारदा देवी का स्वागत बुके और शॉल से हमारे रोटरी सेक्रेटरी नयन अध्याय और डॉक्टर अंकित पटेल दीदी। I just want to ask you, are you all happy being here? Yes. So let's give a rising, a standing ovation to the two ladies. One lady, a big hand. And I now request our club president, Dr. Vidula, to give a small welcome speech. Shivani Didi, B.K. Sharda Didi, President of Ahmedabad Medical Association, Dr. Jitendra Shah, Secretary Dr. Gargi Patel, Coordinator Dr. Ankit Patel, Rotary Secretary Nayan Adhyaru, the man of this event, Dr. Mukesh Bavishi, and guests from all Rotary and Ahmedabad Medical Association, Om Shanti. I could never have imagined that I'll stand here and say a few words of welcome for my dearest Shivani Didi. Actually, what I want to say is nothing other than welcome Shivani Didi. We are too small for a person of your stature of a world spiritual health. And we are here to welcome you with such a stature. Didi, your mere presence, sheer presence is so overwhelming for all of us. Your vibrations are so different, so energizing. Shivani Didi, I want to thank you for accepting our invitation. We are honored. A word for Sharda Didi. Sharda Didi, we know you for more than 2 decades. You have always treated us like family members. And our club, the Rotary Club, thanks you for helping us organize this mega event. Dr. Mukesh Bavishi, although he is my husband, I wish to tell you that you are the main person behind this event. And thank you for being convener of this event. Dr. Jitendra Shah, a batchmate of me and Mukesh since our MBBS days, so for us it's some kind of reunion too. Dr. Gargi Patel and Dr. Ankit, I really appreciate your efforts in making this event a success. Today, the world needs peace more than ever before. And I think that world peace begins with peace of an individual. Like charity begins at home. Shivani Didi, we met you in 2006 and it was such an exhilarating experience. Me and Mukesh can never forget. So we would like to repeat that experience today. And all my friends, all my guests, thank you for coming here.
And you are here for your transformation. So make the most of it. Thank you so much. And we also have a welcome from the Ahmedabad Medical Association. I request Secretary Dr. Dagi Patel to briefly welcome all of us. Thank you. ઓમ શાંતિ. સૌપ્રથમ પરમાત્મા જેની કૃપાથી આ પ્રોગ્રામ અને કાર્યક્રમનું આયોજન છે એ પરમાત્માને હું વંદન કરું છું. ઓમ શાંતિ. બહુ વેલકમ થઈ ગયું એટલે બહુ સરસ કીધું છે. અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન અને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન વિશે અમે દીદીને ઉપર ઓફિસમાં કહી દીધું છે. હું રિપીટ નથી કરતી કારણ કે મને ખ્યાલ છે બધા જ અત્યારે દીદીને સાંભળવા માટે ભેગા થયા છે. Very good morning to everybody. It is said that every day is a fresh start. And today's morning is indeed fresh and beautiful because all we have gathered here in early morning for such a wonderful spiritual sessions. I extend a warm welcome to the entire audience, dignitary on the dais, off the dais, and Rotary Club office bearer on behalf of the Ahmedabad Medical Association. I welcome BK Shivani Didi and Sada Didi from the bottom of my heart. Respected Shivani Didi is a beautiful soul with an inspiring and personality whose words have power to pierce our minds and hearts without any surgery. Everyone I think agree for that. એ બોલે છે ને મગજમાં તરત ઉતરી જાય છે તો એવી not need for our heart and mind any surgery for her words. In today's fast-paced world, full of stress and competition, what we need to realize that the true happiness and peace come from within. From inside, our trueness is coming on. That we all are agree. Each one of us has ability to create such peace and happiness, and that is the essence of the Brahma Kumaris. As we know that organization focused on education, positive thinking and goodness of the soul and has gone from strength to strength with large base of flowers all over the world. તો આ તણાવ ભર્યા જગતમાં ઇનર પીસ કેવી રીતે રાખીએ તે આજે આપણે શીખીશું. અને I hope that the golden words of the respected BK Shivani Didi leave a positive and permanent impact on our minds today. I really welcome Didi in the Ahmedabad Medical Association. અને એક જ वस्तु कहिए एक कहेवत છે આપણા वो ही जीतता है जो ठंडे दिमाग से सोता है. तो આજે આપણે ઠંડુ દિમાગ ઇનર પીસ મગજ કેમ શાંત રાખીશું આજે શીખીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ. So, without any further ado, let's have BK Shivani Didi a big hand, a standing ovation for the सीधा होकर बैठे और अपने ध्यान को यहाँ पर लेकर आए जहाँ हम तिलक लगाते हैं.
गले में बिंदी लगाते हैं। ये एनर्जी सेंटर है, यहाँ से सारा काम होता है, जिसको थर्ड आई कहा जाता है, तीसरा नेत्र कहा जाता है, और जिसको कहते हैं आत्मा का रहने का स्थान, एनर्जी। हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बॉडी जो दिखाई देती है, और बीइंग वो शक्ति जो इस बॉडी को चलाती है। तो 1 मिनट के लिए ध्यान को यहाँ लेकर आए और विजुअलाइज करें एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, like a little star in the center of the forehead. धीरे से देखने की कोशिश करें उसको। This is I. इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, हर थॉट क्रिएट करने वाली, हर शब्द बोलने वाली, और हर कर्म करने वाली शक्ति। ये शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peaceful being. शांति मेरा संस्कार है। It's my nature. शांति मेरा स्वभाव है। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी बात हो, सामने वाले का बिहेवियर कैसा भी हो, मेरा स्वभाव, संस्कार शांति है। इसको विजुअलाइज कीजिए आज के दिन के लिए। पूरा दिन बहुत कुछ करना होगा। Everything that we have to do, वो already fixed है। आज क्या क्या करना है, किससे मिलना है, लेकिन सब कुछ करते हुए मुझे कैसे रहना है, how am I going to be while doing everything, उसको देखिए। A peaceful soul doing everything. अपने संस्कार को अपने कर्म में लाते हुए सहज, easy, natural, just being my nature, मेरी nature है। ओम शांति। जब हम एक प्रोग्राम की तैयारी करते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लुक इनटू, राइट। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, डेट एंड टाइम फाइनल होता है, फिर उसका एक कार्ड बनता है, फिर वो सब तरफ जाता है, फिर इतने सारे ये सारी प्रेपरेशंस होती हैं। तो आज क्या हुआ, और ऐसा कई बार हुआ है कि सारी परफेक्शंस, सारी प्रेपरेशंस परफेक्ट होती हैं, और सामने टाइम देखने के लिए घड़ी भी चाहिए होती है, वो भी आ जाती है। इतना
इतना परफेक्ट होता है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होती है, इतनी अच्छी तैयारी होती है, लेकिन वो घड़ी का सेल नहीं चलता और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होता है। अब सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कभी कभी घड़ी का सेल नहीं चलता, कभी कभी माइक का बैटरी बीच में बंद हो जाती है, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, बैटरी, ये दिखाई नहीं देती है, ये दिखाई नहीं देती है। तो सब कुछ जो इन आँखों से दिखाई देता है, हम उसको चेक करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फूल आ गए, शॉल आ गए, सब ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जो अंदर होता है वो दिखाई नहीं देता और उसके लिए हम अज्यूम करते हैं बैटरी तो ठीक ही होगी, और इसीलिए सब कुछ का ध्यान रखते हुए सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान नहीं जाता, वो बैटरी। लेकिन अगर सब कुछ परफेक्ट है और बैटरी नहीं चले तो प्रोग्राम होगा नहीं हो पाएगा। दिस इज लाइफ। हमारा सारा ध्यान किस पर होता है? सब कुछ जो दिखाई देता है, लेकिन एक ही चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, और वो क्या है? कौन सी एक चीज़ है जो दिखाई नहीं देती? सुबह सुबह भी तैयार होते हैं तो शीशे में अपने आप को देखते हैं, राइट? शीशे में अपने आप को देखते कहते हैं हम ठीक दिख रहे हैं, सब ठीक है, सब परफेक्ट है, वो देखते हैं। लेकिन क्या हम अपने आप को शीशे में देख सकते हैं? Can we see ourselves in the mirror? Yes or no? आप अपने आप को शीशे में नहीं देख सकते, हर रोज तो देखते हो सुबह, और फिर दिन में एक बार थोड़ी देखते हैं। चलते फिरते कहीं भी शीशा दिख जाए, देखते हैं या नहीं देखते? चलते चलते गाड़ी के शीशे में भी चेक कर लेते हैं एक बार, हम ठीक हैं। तो किसको देख रहे हैं हम किसको देख रहे हैं? मैं ठीक हूँ कि नहीं वो तो दिखाई नहीं देगा शीशे में, क्योंकि वो एक ही चीज़ है जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, वो सब आपको ही देखते रहेंगे। दिस इज ऑल्सो लाइफ। हर एक वो कर रहा होता है जो उनको पता होता है कि सही है। ये सब सीखना, ये सब कुछ प्लान है, प्रोग्राम का हिस्सा है। वी गोइंग टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। एवरीवन डज एवरीथिंग व्हिच दे अंडरस्टैंड इज राइट। कोई भी कभी भी कुछ गलत नहीं कर रहा होता है, लेकिन हर एक जो कर रहा होता है वो किसके संस्कार से कर रहा होता है? वो अपने संस्कार से कर रहा होता है। हम किसको देखते हैं और किसको नहीं देखते? कौन सी चीज़ है जो दिखाई देती है, कौन सी चीज़ है जो नहीं दिखाई देती है? हम किसको देखते हैं? हम उनके रोल को देखते हैं, हम उनके पोजीशन को देखते हैं, हम उसके रिश्ते को देखते हैं, और हम क्या कहते हैं? ये ऐसे होने चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए। वो रोल, पोजीशन और रिश्ता नहीं है। वो भी क्या है? वो भी क्या है? वो भी वो शक्ति है जो उस रोल को प्ले कर रही है, उस रिश्ते को निभा रही है। तो एक्चुअली हमारे जीवन में क्या हुआ है, जो मेन चीज़ें हैं लाइफ की, जैसे भाई साहब ने कहा, वृक्ष दिखाई दे रहा है, फूल और फल दिखाई दे रहे हैं। हर एक जो क्रॉस करता है उस वृक्ष को या उस प्लांट को, वो क्या कहते हैं? वेरी प्रिटी फ्लावर्स, वेरी टेस्टी फ्रूट। लेकिन कोई कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग सीड, ऐसा बात करेगा कोई? नहीं। कोई कहेगा कितने पावरफुल रूट्स हैं इसलिए इतना सुंदर वृक्ष है, कभी हम कहते हैं? नहीं। हम किस पर फोकस्ड हैं? जो दिखाई देता है। क्या वो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हेल्दी हो सकते हैं अगर सीड और रूट्स हेल्दी ना होता? तो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये हमारा संस्कार बन चुका है कि हम फोकस्ड किस चीज़ पर हैं? जो दिखाई देती है। मकान को देखते हैं, किसी के घर आप जाएंगे, उन्होंने नया मकान लिया है, आप कहेंगे कितना सुंदर घर है।
फर्नीचर कितना प्रिटी है, पेंटिंग्स कितनी अच्छी हैं, आप कभी कहेंगे फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है? लेकिन क्या वो मकान खड़ा हो सकता है बिना फाउंडेशन के? वो अगर कोई तूफान आए, आंधी आए, तो वो फर्नीचर और पेंटिंग्स और इंटीरियर संभालेगा उस मकान को? कौन संभालेगा? फाउंडेशन। अगर कोई तूफान आए तो क्या वो फल और फूल संभालेंगे उस पेड़ को? उस पेड़ को कौन संभालेगा? फल और फूल तो गिर के टूट भी जाएंगे, लेकिन उस पेड़ को कौन संभाल कर पकड़ के रखेगा? जो दिखाई नहीं देता है। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो दिखाई देती है या जो दिखाई नहीं देती है? कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो दिखाई देती है या जो दिखाई नहीं देती है? नहीं देती है। अपने जीवन में क्या क्या दिखाई देता है? अपने जीवन में क्या क्या दिखाई देता है? Which aspect of our life is visible? बताइए। Visible? सब कुछ बाहर जो है दिखता है, मतलब ये शरीर दिखाई देता है, हमने सब कुछ जो अचीव किया वो दिखाई देता है, हमारी डिग्रीज हर जगह फ्रेम्ड करी हुई लगी हुई है वो दिखाई देती हैं, हमारे रोल्स, पोजीशंस, अचीवमेंट्स, रिश्ते दिखाई देते हैं। कौन सी चीज़ नहीं दिखाई देती? कौन सी चीज़ नहीं दिखाई देती? जो सब कुछ कर रही है। कोई आकर नहीं कहता है वो आपके संस्कार बहुत अच्छे, कहते हैं आप दिखने में बहुत अच्छा, आपने जो काम किया वो बहुत अच्छा है। एवरीबडी इज टॉकिंग ओनली ऑफ दैट विच इज विजिबल। तो हर एक अप्रिशिएट भी उसी को कर रहा है जो विजिबल है, हर एक अवार्ड भी उसी को कर रहा है जो विजिबल है। कोई संस्कारों के बारे में बात नहीं करता है, और जिस बारे में बात नहीं होती, जिसको महिमा नहीं मिलती, जिसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, हम भी उसको अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। हमने कहा इसके बारे में कौन बात करता है, ये तो ठीक ही है सब कुछ। तो जहाँ भी ध्यान नहीं जाएगा, जैसे बताया कि उस बच्चे ने फूल और फल को पानी दिया, और किसको पानी नहीं दिया? अपने आप को पूछिए, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे अपने जीवन में कि फूल और फल को पानी दे रहे हैं? हम अगर किसी से कहते हैं थोड़ी देर सेंटर आया करो, 15 मिनट अपने लिए निकाला करो, मेडिटेशन सीखा करो, कहते जी मरने की भी फुर्सत नहीं है, बहुत काम है। कहते हैं ना, मतलब हम क्या कह रहे हैं? बीज को पानी देने के लिए टाइम नहीं है, और वास्तव में टाइम नहीं। आजकल हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पर पता है क्यों बिजी हैं? क्योंकि वृक्ष बड़ा हो गया है और हम बीज को पानी तो दे नहीं रहे हैं, हम किसको पानी दे रहे हैं? आपने कभी एक्सपीरियंस किया, इस साइड को साफ करो तो ये साइड नाराज हो जाता है, ये साइड तक पहुंचो तो फिर वो साइड नाराज हो जाता है। पहले परिवार को बैलेंस करो, वर्क को बैलेंस करो, फिर तीसरा रोटरी को भी बैलेंस करो, मतलब सेवा को भी बैलेंस करो। तो फिर स्पाउस घर पे कहेगा पहले ही कोई कम था काम, अब एक और ले ली जिम्मेवारी अपने ऊपर, तो घर का था। सो वी आर नेवर एबल टू सैटिस्फाई एवरीबडी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। बट वो काम सारा इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पूरे वृक्ष को धो रहे हैं सारा दिन। तो कहते हैं इसका करो तो ये नाराज़ हो जाता है, ये करो तो ये कोई ना कोई नाराज़ रहता ही रहता है, असंतुष्टता, डिसकंटेंटमेंट। लेकिन उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम मेहनत वाला काम कर रहे हैं। यहाँ धोएंगे तो जब तक यहाँ पहुँचेंगे ये सूख ही जाएगा, लेकिन यहाँ पानी देंगे, यहाँ पानी देंगे, foundation. So spirituality means work on the foundation. Work on that which is not visible. Work on that which is permanent. And most important, work on that from where life is created. वृक्ष कहाँ से निकलता है? बीज से। तो एक बीज के ऊपर अगर ध्यान दिया कि बीज हेल्दी है पहली बार, फिर उस बीज को रोज नरिश किया, तो फिर वृक्ष का हेल्दी होना सर्टेन है। लेकिन बीज को इग्नोर किया और नरिश नहीं किया,
तो क्या वृक्ष हेल्दी हो सकता है? और इसीलिए आज हमारी लाइफ हेल्दी नहीं है। कभी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो कभी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कभी यहाँ कुछ हो रहा है तो कभी वहाँ कुछ हो रहा है। और फिर ऐसे हम जीवन जी रहे थे कि फिर कोविड आ गया, और उस 2 साल के अंदर ये जो बीज है ये और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि 2 साल पूरी दुनिया ने कहा डर, चिंता, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, नॉर्मल, एवरीबडी क्रिएटेड दैट वाइब्रेशन। सो वो वाइब्रेशन क्रिएट करने से इसकी स्थिति क्या हो गई? और डाउन हो गई। फिर कोविड से रिलेटेड और बातें आ गई, बिजनेस अफेक्ट हुआ, जॉब्स अफेक्ट हुए, द वर्ल्ड जस्ट डिड नॉट सेटल आफ्टर दैट। और एक्चुअली परमात्मा ने जो बताया है कि अब सेटल होने के चांसेस ही कम है, अब कुछ ना कुछ होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? Because now the time has come for a big transition to happen. एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। जैसे एक मकान को हम ठीक ठाक करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम आ जाता है कि अब उसको बहुत ज़्यादा ठीक करने की मार्जिन बचती नहीं है। यहाँ से ठीक करो तो यहाँ से कुछ गिरता है, वहाँ ठीक करो तो यहाँ से कुछ टूटता है। तो टाइम आ चुका है एक नया मकान बनाने का। आप रेडी हैं एक नया दुनिया बनाने के लिए? कितना पैचवर्क करते रहेंगे इस दुनिया का, यहाँ कुछ ठीक कर दो, हाँ। आपने, डॉक्टर्स ने इतनी स्टडी कर ली, हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, सब तरह की इक्विपमेंट्स ले आए। 30-40 साल पहले इनमें से मेजॉरिटी चीज़ें नहीं थी, नहीं। आई रिमेंबर 25-30 साल पहले अगर किसी को बोलो कैंसर है तो वो आपको ऐसे ही दिखेगा, अच्छा जाने वाले, बिकॉज दैट इज ओनली हाउ इट वॉज डिफिकल्ट ना तब तक। एंड वी आर नॉट टॉकिंग हिस्ट्री, वी आर टॉकिंग ऑल अभी अपने जीवन काल की बात है ये। और आज कहते कुछ नहीं है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में वो होता है, बाकी तो सारे ठीक हो जाएंगे। तो कितनी मेहनत की है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद क्या हमने एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट की है? अहमदाबाद में पिछले 25 साल में कितने हॉस्पिटल्स खुले होंगे? अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स पिछले 25 साल के अंदर ही खुले हैं। पहले तो हर शहर में एक दो ऐसे हॉस्पिटल होते थे, हाँ वो हॉस्पिटल 2-3 नाम होते थे। अब तो इधर टर्न करो तो हॉस्पिटल, उधर टर्न करो तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पीछे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। एंड देन यू थिंक अबाउट इट, ये इतने हॉस्पिटल चलते कैसे होंगे? इतने अब आजू बाजू हॉस्पिटल बनाएंगे तो चलेंगे कैसे? लेकिन अंदर घुसो तो खड़े होने की जगह नहीं है। एंड दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि इतनी पढ़ाई, इतनी इक्विपमेंट, इतनी रिसर्च सब करने के बाद हमने सिर्फ बीमारियों को ठीक करके मैनेज करने की विधि सीखी, हेल्दी बॉडी क्रिएट करने की विधि नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी? क्योंकि हेल्दी बॉडी यहाँ नहीं, हेल्दी बॉडी यहाँ से क्रिएट हो सकती थी, यहाँ से क्रिएट हो सकती थी। पिछले कुछ महीनों में कितने यंग कार्डियक इश्यूज हुए हैं, आपके आसपास आए होंगे ऐसे, हाँ। और फिर हर एक आपसे पूछता है क्यों, मुझे क्या, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, ये तो बिल्कुल ठीक था। तो फिर आप क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल। तो जो डॉक्टर्स हैं सारे, जब आप दूसरों को बोलते हैं लाइफस्टाइल, आपका खुद का लाइफस्टाइल कैसा है? तो आज के दिन में हम सबको, चाहे हम डॉक्टर्स हैं, रोटरी हैं, कोई भी, हमें आज अपने लिए प्रिस्क्रिप्शन बनानी है। करेंगे? एक कागज लेके अपने आप के लिए प्रिस्क्रिप्शन बनानी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होती क्या है। क्योंकि हम सब सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब दूसरों को देना, लेकिन दूसरों को जो देना है वो सिर्फ डूइंग में नहीं है कि डॉक्टर ने इलाज किया, रोटरी ने प्रोजेक्ट्स किए, किसी के लिए स्कूल, किसी के लिए हॉस्पिटल, किसी के लिए ब्लड डोनेशन, किसी के लिए ऑर्गन डोनेशन, ये सब डूइंग में सेवा है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन एक प्रोजेक्ट है इस टाइम तो चारों तरफ चल रहा है, क्योंकि रोटरी क्या कहता है? रोटरी कहता है जब किसी को कुछ ज़रूरत हो हम
ये है ना मोटो, पक्का है ना, पक्का रखना, फिर नेक्स्ट बात बताना, यू हैव टू बी देयर। दैट इज रोटरी कि वेरेवर देयर इज अ नीड वी आर देयर फॉर सेवा। इस समय सबको किस चीज़ की ज़रूरत है? इस समय सबको किस चीज़ की ज़रूरत है? हम जब प्रोजेक्ट ढूंढते हैं तो हम उस वर्ग की तरफ देखते हैं जिनके पास धन कम है, रिसोर्सेज कम है, हम कहते हैं हमारे पास हैं तो हम उनको देंगे, तो इंटेंशन बहुत अच्छा है। इस समय एक चीज़ है जो सबको चाहिए, और वो वाला प्रोजेक्ट तो अपने घर से स्टार्ट होता है, राइट? क्या चाहिए हर एक को? शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, उमंग चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए। ऐसे ही चल रहे हैं मशीन की तरह, सुबह उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर ऐसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जस्ट एक ऑटोमेटिक मशीन चला दो ना, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कोई न्यूनेस नहीं क्रिएट कर रहे। न्यूनेस मतलब अपनी स्टेट ऑफ माइंड, अपनी वाइब्रेशन ऊपर जानी चाहिए। ये वो वाला समय, दैट इज व्हाई दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल। ये ट्रांजिशन टाइम मतलब दो चीज़ें होंगी इस समय प्लैनेट के ऊपर, और आपको चूज करना है कि आप किस तरफ खड़े होने वाले हैं। जैसे सुबह का समय होता है घर पर 4 और 5 बजे के बीच, घर के कुछ सदस्य उठ जाते हैं, वो उनका अवेकनिंग का टाइम होता है, जागने का टाइम होता है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में कुछ लोग उस टाइम सोने जाते हैं, राइट? तो कभी कभी एक ही घर में गुड मॉर्निंग गुड नाइट सेम टाइम बोला जा रहा होता है। तो एक कहते गुड मॉर्निंग बच्चा, सामने कहते गुड नाइट मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ। ये एक ही टाइम पे हो रहा है दोनों का। यही चीज़ इस समय सृष्टि पर चल रही है। कुछ लोगों ने इस समय जागना है। अब वी हैव टू अवेकन, जिसको हम कहते हैं जागरण। जागरण, जागरण मतलब वो पुराना जीवन जीने का तरीका, वो पुराने इमोशंस, वो ही स्वभाव संस्कार, उसी के साथ अगर हम जी रहे हैं, इट विल नॉट वर्क एनीमोर। अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है? अवेकन। अवेकनिंग मतलब, जागरण मतलब अज्ञान की नींद से जागना। अज्ञान क्या था? मैं शरीर हूँ, ये मेरा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिश्ता है, सामने वाले को भी रिश्ते और रोल पोजीशन के हिसाब से देखना। और फिर इतना अज्ञान कि हमने कहना शुरू किया टेंशन नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, ईर्ष्या नॉर्मल है। ईर्ष्या होती है आपको? होती है ना? कंपैरिजन होता है ना? और वो इतना हमारा संस्कार बन जाता है, इतना हमारा संस्कार बन जाता है कि वो पहले हम सोचते हैं प्रोफेशनल कंपैरिजन, प्रोफेशनल कंपटीशन, फिर उसमें जेलेसी, बट वो हमारा संस्कार बन जाता है। फिर वो संस्कार हमारे साथ घर में भी आता है, क्योंकि अब वो यहाँ है, वो यहाँ नहीं है, वो संस्कार यहाँ होता है। तो जैसे गुस्सा वर्क प्लेस पे क्रिएट करो तो गुस्सा संस्कार घर पे भी आएगा। जेलेसी, कंपैरिजन का संस्कार वर्क प्लेस पे क्रिएट करो तो वो आपके साथ घर पे भी आएगा। छोटे छोटे बच्चों को पूछते हैं कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, मम्मी या पापा? वो बच्चा ऐसे दिखता है, मतलब ऐसा भी होता है क्या कोई ज़्यादा अच्छा लग, उसके लिए तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन हम उसको सिखाते हैं। वो कहते हैं दोनों, कहते नहीं दोनों नहीं, दोनों में से ज़्यादा कौन? वी टीच दैट चाइल्ड and we are teaching that child there is always one less, there is always one more and this is better। ये हम उसको सिखा रहे हैं। और जब अगर वो बच्चा बोलेगा, मम्मी को अगर बोला कि पापा, तो मम्मी का चेहरा थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, तुमको पापा अच्छे लगते हैं। किससे जेलसी हो रही है? किससे जेलसी हो रही है? और अगर मम्मी और पापा दोनों नहीं बोलते और बोला दादी, फिर तो इतना ये सटल होता है, ये बहुत सटल होता है कि आई एम द वन, सब मुझे लाइक करें, सब मुझे अच्छा बोले। तो वो जेलेसी का संस्कार घर पर भी जाता है, और फिर वहाँ से वो जेलेसी और कंपैरिजन का संस्कार सेवा में भी आ जाता है। तो हम हैं सेवा करने के लिए, देने की एनर्जी के लिए, लेकिन उसमें भी मैं, तू, मेरा, तेरा, वो सब कुछ आ जाता है। और जब वो आ जाता है तो सेवा के अंदर क्या आने लगता है?
एनर्जी ऐसे वाली थी, लेकिन अगर ईगो, जेलसी, कंपैरिजन आ गया तो वो ऐसे वाली एनर्जी की बजाय मुझे चाहिए। कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, प्रोग्राम होता है, सबसे बड़ा जो माइंड पर चलता है किसको किधर बिठाना है, किसको आगे बुलाना है, फिर आगे बुलाकर लेफ्ट बिठाना है, राइट बिठाना है, और कोई चीज़ में इतना नहीं सोचना पड़ता जितना इसमें सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक भी इधर से उधर गलत हुआ, और गलत तो फिर हम करते नहीं है, लेकिन सामने वाले को वो गलत लगता है, तो वो सामने वाले की मन की स्थिति क्या हो जाती है, हम इतनी मैनेजमेंट करते रहते हैं उसके। सबको बिठाना है, बहुत अच्छे से बिठाना है, रिस्पेक्ट देनी है हर एक को। लेकिन अगर बाई चांस किसी से कुछ मिस हुआ, कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो we have to just take it. But that also people get angry. मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, मुझे ही नहीं स्टेज पे बुलाया फोटो के लिए, तो प्रोजेक्ट किसके लिए किया था? अब किसी को बोलो आपने फोटो के लिए प्रोजेक्ट, कहते नहीं मैंने फोटो के लिए थोड़ी प्रोजेक्ट किया था, विच इज राइट, उन्होंने फोटो के लिए थोड़ी प्रोजेक्ट किया था। लेकिन उस समय जब मन को बुरा लगे, उस समय अपने आप को बताओ कि मैंने फोटो के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया था, ताकि वो प्रोजेक्ट करके जो आपको खुशी मिली, जो आपने सबको सुख दिया, जो आपको सबसे दुआएं मिली, वो एक फोटो के पीछे सारी वॉश आउट ना हो जाए। वॉश आउट हो जाती है ना सारी, क्योंकि मूड खराब हो जाता है। फिर मन ही मन पता है क्या भी पक्का करते हैं, जाने दो, इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं, मैंने नहीं अगली बार ज़्यादा इंटरफेयर करना, करते रहे अपने आप जो करना है, मेरी वैल्यू तो है नहीं इनको कुछ भी। अपने ब्यूटीफुल सेवा के संस्कार को भी क्या कर देते हैं साइड पे, क्योंकि एक फोटो में मिले। वाई? बिकॉज दैट फोटो इज विजिबल। सारा फोकस किस पर है? विजिबल। वो फोटो होगी, फिर वो छपेगी हर जगह, फिर सब लोग देखेंगे। बचपन से हम सीखते आए हैं कि दान और सेवा अर्थात एक हाथ करे, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। इसका मीनिंग क्या था? मतलब एक हाथ से ऐसे दान दो कि दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। उसका मीनिंग क्या? क्यों दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए? मीनिंग क्या? क्योंकि जो दान गुप्त होगा उसमें कोई मैंपन नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही अहंकार आया तो वो सेवा भी आत्मिक शक्ति घटाने का कारण बन जाती है। कर रहे हैं सेवा, सेवा इज टू एम्पावर पीपल, टू हील पीपल। लोगों को दुख से सुख में लाने की सेवा है। तो चाहे डॉक्टर्स हो चाहे रोटरी, दोनों यही सेवा कर रहे हैं, सबके दुख खत्म करके सबको सुख में लाने के। लेकिन सोचिए, सबके दुख खत्म करते हुए अगर खुद दुखी हो गए तो फिर तो हमें उस साइड पे बैठना पड़ेगा। दिस वी हैव टू चेक। सेवा इज नॉट ओनली अबाउट द डूइंग, सेवा इज अबाउट हु वी आर, हमारी वाइब्रेशन। तो आज एक चीज पक्की करें, हम सेवा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हम सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा संस्कार है। और सेवा को अपना संस्कार बना लें, मतलब जीवन में सब कुछ जो आप कर रहे हैं उसको एक सेवा कॉन्शियसनेस से करें, सिर्फ एक प्रोजेक्ट को नहीं। सेवा एक कॉन्शियसनेस है, सेवा एक प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ सेवा एक कॉन्शियसनेस है जो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी लाती है कि हम सेवा हैं, ऐसे हैं। और जब हम सेवा भूल जाते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं, और वो हमारे अंदर क्या लाता है? ईगो लाता है। तो हमेशा हर एक चीज़ के लिए मैं सेवा पर हूँ। चाहे आप प्रोजेक्ट पे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में, चाहे आप घर पे हैं। आप देखो, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, सेवा करते हैं, कोई झाड़ू पोछा लगाता है, कोई चप्पल उठाता है, कोई खाना परोसता है, सारी सेवा करते हैं ना जाकर हम वहाँ पर। तो कोई आता है, बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं, फिर गुरुद्वारे में उतर के सबकी चप्पलें जूते रखते हैं अच्छे से हर जगह पर। फिर घर जाते हैं पूरा दिन सेवा करके, तो घर जाके कोई कहता है मेरी चप्पल देना 1 मिनट। तो क्या करते हैं? कहते क्यों? आप नहीं उठा सकते अपने आप? बोलो अभी तो आप सबकी चप्पलें उठा रहे थे। तो वो क्या बोलेंगे इमीडिएटली? वो तो क्या था?
वो तो सेवा थी। सी द डिफरेंस? जहाँ सेवा होती है वहाँ ह्यूमिलिटी है, और जहाँ सेवा कॉन्शियसनेस हट गए वहाँ ईगो है। तो सेवा इज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, whether we are working, whether we are with family, whether we are in the project, whatever, हम सेवा पर हैं। मतलब हमारा हाथ साधा कैसा है? ये हाथ, मतलब ये वाला हाथ नहीं, ये वाला। और सबसे बड़ी सेवा कौन सी चाहिए? सबको क्या देना है? शांति देनी है, प्यार देना है, खुशी देनी है। और देने के लिए क्या खत्म करना है? चाहिए खत्म करना है। तो आपको शांति चाहिए या आप शांति सबको देना चाहते हैं? पहले इक्वेशन सेट करते हैं कि मुझे इस साइड खड़े होना है या मुझे इस साइड खड़े होना है। जैसे हम रोड पे जाते हैं, रेड सिग्नल पर गाड़ी रोकते हैं, कोई आता है ऐसे ठक ठक आता है, तो वो बहुत क्लियर है कि वो उस साइड पर है, और हम बहुत क्लियर हैं कि हम कौन सी साइड पर हैं। ऐसे ही जीवन में सब ठक ठक करते हैं। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, कोई गलत व्यवहार करता है, याद रखना वो ऐसे खड़ा है आपके सामने, और आपको लगता है ओ वो मेरे साथ गलत कर रहा है। वो मेरे साथ नहीं गलत कर रहा, उसके मन की शांति क्या हुई है? वो ऐसे खड़ा हुआ है। अब आपकी चॉइस है कि जब वो आपके सामने ऐसे खड़ा है, आपने क्या करना है? क्या आपने उसको देना है या आपने भी साथ में ऐसे खड़े हो जाना है? तो जैसे हम रिएक्ट करते हैं, मतलब किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया और हम डिस्टर्ब हुए, तो वो ऐसे खड़े थे, अब हम भी कैसे खड़े? अब हम भी कैसे खड़े? हम भी ऐसे खड़े हैं। मतलब बोले आपने ऐसा किया कैसे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा। वो नहीं है उसके पास, हमारे पास तो थी ना, फिर हम तो शिफ्ट हो गए उस साइड पर, और फिर हम उसको बोलते हैं आपको ऐसे करना चाहिए था, आपको ऐसे, और ये बोल बोल कर धीरे धीरे हम सारे इस साइड पर आ गए। शांति हमारा संस्कार है, लेकिन वो हमें तब याद रहेगा जब मुझे याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। जब मैं एक रोल बन जाती हूँ, एक पोजीशन बन जाती हूँ, तो मैं क्या भूल जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है। तो दो कॉन्शियसनेस है जीवन जीने के, एक है सोल कॉन्शियसनेस, एक है ईगो कॉन्शियसनेस। हम ज़्यादातर कौन सी कॉन्शियसनेस से जी रहे हैं? ईगो मतलब जो कुछ हमने इस शरीर में आकर अचीव किया है और उसको हमने मैं कह दिया। इवन अगर एक पेरेंट एक बच्चे से बात कर रहा है तो वो ईगो कॉन्शियसनेस से बात कर रहा है। मैं पेरेंट हूँ, तुम बच्चा हो। रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो। दोनों में फर्क क्या है? जब मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, तो हम दोनों क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। जब मैं एक रिश्ता हूँ, रोल हूँ, पोजीशन हूँ, बॉडी की एज हूँ, हम क्या कहते हैं? मैं आपसे बड़ा हूँ। कौन बड़ा? कौन बड़ा है? जब हम कहते हैं मैं आपसे बड़ा हूँ, तो कौन बड़ा है? खड़े हो जाओ एक मिनट। नहीं आता। चलो सबके सामने अपनी एज बताओ। 28। किसकी एज है? मेरी बॉडी की। तो आपकी एज तो नहीं हुई ना, फिर आपकी एज क्या है? आपकी कोई एज ही नहीं है। हाँ, अब आपकी एज नहीं है ना, पक्का ना? आत्मा की कोई एज नहीं है। दिस इज हाउ वी हैव टू लिव लाइफ। एक हम ये ड्रेस पहनते हैं, ये हमें पता है कि 2 महीने पुरानी है, 6 महीने पुरानी है। हम कोई आपको बोले हाउ ओल्ड आर यू, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे 6 months। नहीं, आप अपनी ड्रेस की एज नहीं बोलेंगे। अब कोई आपको पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, उसने ये थोड़ी पूछा हाउ ओल्ड इज योर बॉडी। जब कोई बोले हाउ ओल्ड इज योर बॉडी, तब बोलो 30, 40, 50। हाउ ओल्ड आर यू? देखा, इतना हमें भूला हुआ है कि हम कौन है। कि कोई हमें पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, तो हम अपनी ड्रेस की एज बता देते हैं। इतना हम ईगो कॉन्शियसनेस में हैं। ईगो मीन्स
attachment to a wrong image of myself. और रॉन्ग इमेज मतलब बॉडी को मैं समझना, रॉन्ग इमेज। मैं पेरेंट हूँ, ये बच्चा है, मैं हस्बैंड हूँ, ये वाइफ है, रॉन्ग इमेज। ये मेरे रिश्ते हैं, बट इट इज़ नॉट आई। आई एम नॉट अ हस्बैंड, आई एम नॉट अ वाइफ, दैट इज माई रिलेशनशिप, माई रोल। मैं रोल हूँ, मैं पोजिशन हूँ, दैट इज एन इमेज। तो ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। तो मेरा ईगो आपकी ईगो से बात करता है। जब एक रोल से बात करता है तो ईगो ईगो से बात करता है, और जब ईगो ईगो से बात करता है तो टक्कर होती है। और इसीलिए राजयोग अर्थात परमात्मा सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो हमें सिखाते हैं, हमें खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, रिश्ते रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ मेरे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है। आज आप अपने पेशेंट्स को भी बताइए, अपने आप के लिए बोलते रहते हैं आई एम डायबिटिक। आई एम डायबिटिक कैसे हो गया? आई एम डायबिटिक होने से तो और बीमार हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। मैं नहीं बीमार हूँ, मेरा शरीर बीमार है, और दोनों में उतना ही फर्क है जितना अगर ये कपड़ा फट जाए और मैं कहूँ मैं फट गई। जैसे ही वो व्यक्ति कहता है मेरा शरीर बीमार है, उसको ये रियलाइजेशन है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरा शरीर बीमार है, और मेरे पास वो पावर है कि राइट एनर्जी देकर उस शरीर की हीलिंग में अपना पार्ट प्ले करना है। लेकिन अगर मैंने कहना शुरू किया मैं बीमार, तो बॉडी को कौन सी एनर्जी जाएगी? इवन अगर कोई उस स्टेज पर है जहाँ आपको पता है कि अब उनकी बॉडी ठीक नहीं हो सकती, उस समय तो और भी इम्पोर्टेंट होता है कि आत्मा को हैप्पी एंड पीसफुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उस समय क्यों हैप्पी एंड पीसफुल होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नया बॉडी मिलने वाला है, इसलिए हैप्पी होना चाहिए। हमें तो डेथ का डर लगता है, हम शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, और कोई और छोड़ रहा है तो हम रोते इतना है कि उसकी नई जर्नी को पेनफुल बना देते हैं, क्योंकि हमें लगता है खत्म हो गए, फिनिश्ड। हम कहते हैं दे आर नो मोर नहीं, देयर बॉडी इज नो मोर, देयर बॉडी इज नो मोर। वो कहाँ चले गए? ये घड़ी अगर टूट जाए तो सेल थोड़ी खत्म हो जाता है, हम सेल को निकालते हैं और दूसरी घड़ी में डाल देते हैं, और ये वाला सेल तो इटर्नल है, ये बैटरी। पंडित जी वहाँ कह रहे होते हैं आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम कहते हैं वो चले गए, वो नहीं रहे। वो कह रहे हैं वो हैं, वो कहते हैं वो नहीं रहे। सुन भी रहे हैं उनको और कहते हैं वो नहीं रहे, शरीर नहीं रहा। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है, आत्मा के गर्भ पर माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। बहुत इम्पोर्टेंट है अपने हर पेशेंट को बताना कि आपके अंदर जो 9 मंथ्स में क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ एक बॉडी नहीं है। आप हर महीने उनका अल्ट्रासाउंड करते हो और उनको बोलते हो ये ठीक है। यू आर ओनली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बॉडी क्रिएशन। सोल तो जस्ट गोज एंड एंटर्स, ऐसे जस्ट एंटर्स। और फिर वो पेरेंट को क्या ध्यान रखना है? 2 सेट ऑफ लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि उस आत्मा का एक नई डेस्टिनी क्रिएट हो रही है। आप सोचो, जस्ट विजुअलाइज करो कि आप यहाँ से निकले, माँ के गर्भ में प्रवेश किया, अब एक नया शरीर बन रहा है, लेकिन उस शरीर के बनने में हमारी वाइब्रेशंस का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मनोस्थिति का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। उसको कहा जाता है गर्भ संस्कार। अब गर्भ संस्कार में किस किस का असर पड़ेगा? गर्भ संस्कार में, इसको विजुअलाइज करें, एक बेबी क्रिएट हो रहा है, बॉडी, सोल हैज एंटर्ड, लेकिन सोल की जो स्थिति है
अगर वो परेशान है, चिंता में है, डर में है, तो उसके नए कॉस्ट्यूम पर उसका असर पड़ेगा? पड़ेगा। अब इस सोल की वाइब्रेशन पर किस किस का असर पड़ेगा? आत्मा तो एंटर हो गई, उसकी वाइब्रेशन से उसकी बॉडी बन रही है, बट उसकी वाइब्रेशन पर किस किस की वाइब्रेशन का असर पड़ेगा? मदर का असर पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि उस बॉडी के अंदर 2 सोल्स रह रही हैं उतने 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। मदर का असर पड़ेगा। और किसका असर पड़ेगा? सराउंडिंग का असर पड़ेगा। वेरी गुड, तो मतलब पूरी फैमिली का, वो क्या सुनते पढ़ते हैं उसका असर पड़ेगा। और किसी का असर पड़ेगा? मदर जो सोचते हैं। अभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन, उस आत्मा पर किसका असर पड़ेगा? हाँ वेरी गुड, डॉक्टर का असर पड़ेगा। और नहीं तो क्या, बिल्कुल असर पड़ेगा। रिलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस हो रहा है। आगे का संस्कार, आगे का जो लेके आए हैं संस्कार। आप ये सोचो, अभी विजुअलाइज करो, ठीक है? अपने आप को देखना। हम सब ने जाना है कि नहीं कभी? हम सब ने शरीर को छोड़ना है कि नहीं? किस किस को सर्टन है? वेरी गुड, तो तैयारी करते हैं। हम यहाँ से निकलेंगे, एक नए गर्भ में प्रवेश करेंगे, ठीक है? विजुअलाइज करो कि मैं आत्मा उधर चली गई, मुझे पता नहीं मैं कहाँ गई, वो कौन सी फैमिली है, क्या है, कुछ नहीं पता अभी। हम एक अनसर्टेन जगह पर, नई जगह पर हम जाके पहुँच गए। हमारा कनेक्शन अभी किसके साथ है ज़्यादा? और वो पास्ट वाली फैमिली की स्थिति कैसी है? वो कैसी है? वो रो रहे, वो कहते तुम चले कैसे गए, तुम्हारे बिना ये घर कैसे चलेगा, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, तुमको वापस आना ही पड़ेगा, तुमको वापस आना ही पड़ेगा। ये सारी थॉट्स किधर जाएंगे? अब आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि आप गर्भ में एंटर कर चुके हैं और पीछे की फैमिली से ये सारी थॉट्स आ रही है आपको, क्या होगा अंदर उधर? तो वो जब थॉट्स आएंगे वो गर्भ के अंदर, तो वो आत्मा की हालत कैसी होगी? कैसे होगी? कैसे होगी? आपको पता है, जो 8-10 महीने यहाँ रोना चलता है, उतनी देर में वो नई डेस्टिनी क्रिएट हो जाती है। और उस सारी डेस्टिनी को हमने कौन सी वाइब्रेशन पे स्टार्ट किया? पेन, क्राइंग, शाउटिंग, स्क्रीमिंग, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वो आ भी नहीं सकते और हम उनको खींचते भी जाते हैं। तो जो लाइफ की सबसे टफेस्ट सिचुएशन होती है ना, कि जब हमारे किसी फैमिली मेंबर ने शरीर छोड़कर आगे गए हैं, उस टफेस्ट सिचुएशन में भी हमको बहुत पीसफुल और पावरफुल रहना है, क्योंकि उसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उस सिचुएशन में हम पीसफुल तब रह पाएंगे अगर हम सारा दिन की छोटी छोटी बातों में पीसफुल रहेंगे, तब हम रह पाएंगे। सबसे बड़ी गिफ्ट होती है हमारी अपने परिवार के सदस्य को। कोई एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसको रो धो के बेचते हैं। किसी के घर में किसी ने अचानक शरीर छोड़ा, मतलब रात को सोए सुबह नहीं उठे, या अभी ठीक थे अभी चले गए। इज दैट अ नाइस वे टू लिव? इज दैट अ नाइस वे टू लिव? कौन कौन ऐसे जाना चाहेगा? कुछ पता ही नहीं चला, कोई सफड़ी भी नहीं, आपके पास हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचना हमें, नहीं तो फिर वो सारी पाइपें लग जाती है हमारे चारों तरफ। नहीं, इलाज हो रहा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जाना ही है तो कैसे जाना चाहिए फिर? लेकिन हम नहीं देखते उसको। जो रेस्ट ऑफ द फैमिली ऐसे कैसे चले गए अचानक, मेरी बात भी नहीं हुई उनसे, मतलब उस आत्मा के लिए जो अच्छा हुआ हम कहते हैं वो गलत हुआ। कितना ईगो है। ईगो मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। प्यार मतलब कितनी फॉर्चुनेट आत्मा है, बिल्कुल दुख भी नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ, उसको तो पता ही नहीं चला, ये तो ऐसे उड़ गई। कितना अच्छा कर्म करना पड़ेगा ऐसे उड़कर जाने के लिए। लेकिन हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे होते, हम किसके बारे में सोच रहे होते हैं? ऐसे कैसे चले गए?
तो हम ऐसे परिवारों को बोलते हैं अच्छा आपको अच्छा लगता अगर वो 1 महीना आईसीयू में हो तो फिर जाते तो आपके लिए इजी हो जाता उसको एक्सेप्ट करना। नहीं, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं चाहिए, वैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में माइंड डिस्टर्ब ही है। तो माइंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, माइंड इज डिपेंडेंट टोटली ऑन एक बहन अहमदाबाद में ही रहती थी, अभी तो शी लेफ्ट द बॉडी लास्ट ईयर, लेकिन वो कुछ साल पहले माउंट आबू आई थी और वो यूएस में रहती थी तब, और उन्होंने एक दिन ऐसे टीवी का प्रोग्राम देखा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी सॉ द प्रोग्राम, उसको कुछ नहीं पता था उससे पहले, और वो पर्टिकुलर एपिसोड इस बारे में था कि अगर कोई शरीर छोड़ता है और अगर तब हम बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, रोते हैं, तो हमारा सारा दर्द उधर जाता है, उस सोल की तरफ जाता है। तो हमें सिर्फ मेडिटेशन करके, प्रेयर्स करके उसको पीस एंड पावर भेजनी चाहिए, और उसकी नई जर्नी को कैसे बनाना चाहिए, बहुत डिग्निफाइड, बहुत प्यार से भेजना चाहिए। एंड फिर उसने आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आबू में, कहती बस वो फर्स्ट टाइम ही मैंने सुना और टॉपिक ऐसे वाला था, लेकिन उस दिन मैंने पक्का कर लिया कि अगर कभी मेरे घर में ऐसा कुछ होगा तो मैंने बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। एग्जैक्टली 1 वीक लेटर, और 1 वीक कोई टाइम नहीं होता है, उसने फ़ोन उठाया और उसको ये पता चला कि उसका बेटा जो मेडिकल कॉलेज में यहाँ था गुजरात में, वो अमेरिका से यहाँ आया, एयरपोर्ट से कॉलेज की तरफ जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ, द चाइल्ड वाज नो मोर, एंड शी वाज द वन हू पिक्ड अप द फोन टू हियर दैट, एंड व्हेन शी हर्ड दैट हर फर्स्ट थॉट वाज अपने बच्चे को मैंने दर्द नहीं भेजना, एंड शी क्रिएटेड मैजिक। उसने 1 सेकेंड में अपने आप को स्विच किया इधर कि मैंने उसको दर्द नहीं भेजना है बिल्कुल भी, एंड उसने वहाँ के तब तक तो वो सेंटर को नहीं जानती थी, उसको कुछ नहीं, 1 वीक ही उसने शी फाउंड द सेंटर। अमेरिका में तो दूर दूर होते हैं इसके लिए, इधर जैसा नहीं, इंडिया जैसा, एंड उसने सेंटर बहनों को रिक्वेस्ट किया आप प्लीज़ हमारे घर आइए, एंड शी मेड श्योर कि अगले उतने दिनों तक कोई उस बच्चे के लिए रोएगा नहीं, एंड जो भी आया वो उसको बोलती थी आओ बैठो, साइलेंस में बैठो, आओ आप मेडिटेट करो, यू आर नॉट अलाउड टू सेंड पेन टू माई सन। और ऐसा करते करते वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि उसने फिर वो अपने जीवन की सेवा बना ली कि जब भी किसी के भी घर कुछ होता था ना ऐसा, वो उनके घर ये सेवा करने जाती थी कि उसको समझाना है और उनके यहाँ भी शक्ति लेकर आनी है। इट इज़ सो सिंपल, ओनली इफ वी अंडरस्टैंड, इफ वी अंडरस्टैंड। और अगर हम नहीं अंडरस्टैंड करते तो हम तो छोटी छोटी बातों में रो रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब हो रहे, अपसेट हो रहे हैं, और वो डिस्टर्ब होकर हम जो शांति हमारी शक्ति है, नेचर है, उसको हम क्या करते जा रहे हैं। तो शांति इज लाइक हेल्थ, हेल्थ नेचुरल है, ध्यान नहीं रखा तो इलनेस है। हमने ऑपोजिट बोल दिया आज, हम कहते स्ट्रेस नॉर्मल है, फियर नॉर्मल है, वरी नॉर्मल है, अग्रेशन नॉर्मल है, कंपैरिजन नॉर्मल है, जेलसी नॉर्मल है। तो हमने इलनेस को नॉर्मल बोल दिया है और फिर हम कहते हैं शांति चाहिए, मतलब हेल्थ चाहिए। तो नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना है, और इसीलिए राजयोग अर्थात सबसे पहले ये रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये सब कुछ जो दिखाई देता है ये मैं नहीं, ये मेरा है, मेरा है, राइट बात है, ये सब कुछ मेरा है, वहाँ नहीं देखना है, ये सब कुछ मेरा है, यस। परमानेंट है, टेम्पररी है, टेम्पररी है, पक्की बात है, एक दिन छूटने वाला है, वेरी गुड। तो जब पक्की बात है, छूटने वाला है, तो उस छूटने वाली बात पर इतना खींचतान करके जो परमानेंट है उसको क्या कर देते हैं, 2 ही चीज़ें यहाँ साथ जाएंगी, हर चीज़ पीछे छूट जाएगी। ये रोज़ जिसको शीशे में देखते हैं वो भी जला देंगे, वो अगले दिन ही। कितने दिन रखता है परिवार इसको। आप किसी की सर्जरी करते हैं, आप नर्स को बोलते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ, उस समय आप उसको नाम से रेफर करते हैं। अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो आप कहते सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। ये कैसे चेंज हो गया।
और फिर उस व्यक्ति का परिवार भी आता है और कहते हैं डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं। उससे पहले वो कहते डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को ठीक कर दो, डॉक्टर साहब हमारे पापा को ठीक कर दो, और अब कहते डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं। हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं कि वो अब सिर्फ एक बॉडी है, जिसके साथ हमारा रिश्ता था वो तो चले गए। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है? शरीर छूट गया, लोग छूट गए, ये सब अचीवमेंट्स छूट गए, सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी वो छूट गई। कुछ जाएगा साथ में, इसमें से साथ में एक ही चीज जाएगी, उस परिस्थिति और उस सिचुएशन के बारे में हमने कैसा सोचा, मतलब मेरा संस्कार और कर्म कैसा था वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा और उसको कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। तो आज का होमवर्क, आज भी बातें आएंगी, हर टाइम याद रखना, काम करना है, करवाना है, लेकिन ऐसे संस्कार और कर्म से करवाना है जो साथ लेकर जाने में अच्छे लगे, राइट? क्योंकि जैसे ही आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ेगी, आगे जाएगी, कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा, 2 दिन के अंदर पंडित जी जन्मपत्री बना देंगे। तो हमारा कर्म और संस्कार सिर्फ हमारे इस एक जीवन का भाग्य नहीं बना रहा है। कितना भाग्य बन रहा है? तो कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो पंडित जी कहते क्या भाग्य लेकर आए हैं, पूरे परिवार का भी भाग्य बदल देंगे ये तो मतलब वो आत्मा पिछले कॉस्ट्यूम में क्या करके आई है? ऐसे कर्म और संस्कार रिकॉर्ड करके आई है। और फिर कुछ भाग्य ऐसे होते हैं कि पंडित जी होते हैं हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये साल में ऐसा, लेकिन ये बात आएगी, लेकिन ये, वो सारे लेकिन कौन से हैं जो हमने इस कॉस्ट्यूम में बोला था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसे क्यों हुआ, लेकिन ऐसे क्यों हुआ। हम जितनी बार रिएक्ट करते जा रहे हैं, हम आत्मा की शक्ति को क्या करते जा रहे हैं? घटा रहे हैं। और वो हमारा कर्म और हमारा संस्कार रिकॉर्ड होता जा रहा है। 1 सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। जितने इस पिछले 2-3 महीने में सुनेंगे, कोई रात को सोया सुबह नहीं उठा, तो आपको नहीं लगता है रोज रात को सोने से पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। सपोज हम सुबह नहीं उठे तो परमात्मा सिखाते हैं कि जीवन को ऐसा जिए कि हर घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। ऑलवेज रेडी टू लीव, इसका मतलब ये लीव कर रहे हैं, लेकिन जो लीव करने के लिए रेडी रहेगा वो ही लिव सही तरह से करेगा। जिसको लगेगा ये मेरा सारा परमानेंट है, वो उसके साथ उलझता रहता है, झगड़ा करता रहता है, खींचतान करता है, किसी को नीचे गिराता है, किसी को पीछे करता है, क्योंकि उसको लगता है यही मेरी जीवन है। और जिसको याद रहता है ये जीवन है, वो यहाँ रहेगा, सबका ध्यान रखेगा, सबकी सेवा करेगा, ऐसे रहेगा वो हमेशा। कोई बात आएगी उलझेगा नहीं, और कुछ होगी भी टक्कर तो वो अपने कर्म और संस्कार पर अटेंशन रखेगा। तो उसका जीवन जीने का तरीका भी कैसा हो जाएगा? द लाइफ विल बी वेरी लाइट, वेरी लाइट। जब भी आप किसी से उलझेंगे, कुछ होगा यहाँ भारी होने लगता है। फील हुआ यहाँ कभी भारी होता है? होता है या नहीं भारी होता? यहाँ भारी होता है। और जब यहाँ भारी होता है उसका असर शरीर पर बीमारी बनती है। कोई भी अगर आपके पास कोई क्रॉनिक एलिमेंट के साथ आता है तो आप उनको सिर्फ सिंपल पूछिए, पिछले 2-3 साल में आपकी लाइफ में कुछ हुआ? हमने देखा है कि कम से कम 2-3 साल लगते हैं यहाँ के ब्लॉकेज को यहाँ ब्लॉकेज करने के लिए। मतलब क्रॉनिक एलिमेंट कि कोई ब्लॉकेज हो गया, कोई ट्यूमर बन गया, कोई क्लॉट बन गया, वो पहले यहाँ बनता है। ऐसा नहीं छोटी छोटी बात का स्ट्रेस नहीं, कोई रियल सिचुएशन है मेरी लाइफ में जिसकी मेरी सोच बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो पहले यहाँ बनता है। यहाँ की वाइब्रेशन क्या हो रही है? बॉडी पे जा रही है, फिर वो यहाँ बनता है। इज इट वर्थ इट? किसी भी बात में इतना उलझना जो शरीर में बीमारी बन जाए? फिर मन की तो शांति जाए, शरीर में भी बीमारी बन जाए। कौन सा व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आप अपने शरीर में बीमारी लाने के लिए रेडी हैं? और
कौन से हमारे व्यवहार ऐसे हैं जिसकी वजह से सामने वाले के शरीर में कल को बीमारी हो जाए? क्योंकि वो हमारा परिवार है, वो हमारा स्पाउस है, वो हमारे बच्चे हैं। हम अपनी ईगो की वजह से झुकते नहीं। कुछ बात हो जाती है तो जोर जोर से शोर मचते रहते हैं, फिर पूरे शोर मच गए, उसके बाद बात ही करना बंद कर देते हैं। पहले शोर मचने में यहाँ असर होता है, फिर बात करना बंद कर देते हैं, फिर यहाँ असर होता है, फिर सामने वाला बात करने की कोशिश करता है, उसको रिजेक्ट करते रहते हैं, फिर यहाँ असर होता है। और ये वो वाले लोग हैं कि अगर कल उनको कुछ हो जाए तो अपना घर बेचने के लिए रेडी है, उनका ध्यान रखने के लिए, लेकिन अपने ईगो को झुकाने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि हमने कहा मैं बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं कौन। इसीलिए सिर्फ एक चीज़ करनी है, शांति चाहिए, ये वर्ड आज से छोड़ देना और क्या बोलना है? आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति का अर्थ ही यह है। कोई शरीर छोड़ता है तो लोग कहते हैं ओम शांति, हम जीते हुए कहते हैं ओम शांति। क्योंकि अगर जीते हुए ओम शांति होंगे तो ही जाने के टाइम ओम शांति होंगे। अगर जीते हुए अशांत है तो जाते हुए भी अशांत ही जाएंगे, शांति के साथ नहीं जा सकते। क्योंकि अपने संस्कार और अपने कर्म साथ लेकर जाएंगे। तो काम करते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी ध्यान रखना, ये सब जिस चीज़ों के पीछे खींचतान चल रही है ना हमारी, ये साथ नहीं जाएंगी। और इस समय भी वो हमें खुशी नहीं दे सकती, वो सिर्फ हमें महिमा दे सकती है। राइट है? अप्रिसिएशन, महिमा और खुशी में फर्क है? फर्क? तो कोई अगर आपके साथ टग ऑफ वॉर करे खींचतान का, तो हमें क्या कर देना चाहिए? अगर कोई खींचतान करता ना, कोई ओहदे के लिए, कोई रोल के लिए, कोई पोजीशन के लिए, कोई आगे जाने के लिए, कोई खींचतान करे टग ऑफ वॉर जैसा, तो हमें क्या करना चाहिए? विजुअलाइज करो कुछ खींचतान हो रही है रस्सी की, तो हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। खेलता रहेगा अपने आप उधर, आप खेलो, हमको नहीं चाहिए। हम सेवा पर हैं, हम ओहदे के लिए नहीं आए थे यहाँ, हम रोल और पोजीशन के लिए नहीं आए थे यहाँ। हमेशा ध्यान रखना, जो सेवा कॉन्शियसनेस से जी रहा है वो हमेशा खुश और लाइट रहेगा, क्योंकि वो ऐसे जी रहा है। प्रकृति कैसे जीती है? ऐसे जीती है ना। वृक्ष क्या करता है? वृक्ष क्या करता है? हमें क्या दे रहा है? हमें ऑक्सीजन दे रहा है। एक दिन वो वृक्ष डिसाइड करे, इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया है, मैंने नहीं इनको ऑक्सीजन देना, और वो वृक्ष ऑक्सीजन देना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीजन ट्री से बाहर नहीं निकलेगा, अंदर रहेगा, तो वो वृक्ष क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो वृक्ष ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। वही हम होने लग गए हैं, क्योंकि हमने देना बंद कर दिया और हम इस डायरेक्शन में हो गए। लाइफ इज अबाउट शांति देना, खुशी देना, प्यार देना, ट्रस्ट देना, लोगों को अंडरस्टैंड करना। हमने कहा मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, आप मुझे ट्रस्ट करो, आप मुझे समझो, आप मेरा कहना मानो। वी वेंट अगेंस्ट नेचर, और इसीलिए वो करते हुए सब कुछ मिल गया लाइफ के अंदर, लेकिन अभी भी चाहिए की साइड पर खड़े हैं। हमें कुछ चाहिए क्या? हमें कुछ चाहिए? बोलिए एक बार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो मुझे किसी से, अभी रुको, एक बार बोलो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक बार आंख बंद करो, सारे लोग देख लो, क्लोज एनर्जी सब। चलो एक दोनों को देखो सब, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। नाम, मान, शान, महिमा, क्या नहीं चाहिए? प्यार, रिस्पेक्ट, क्या? अच्छा, वो मेरा कहना माने, हम राय दे सकते हैं सबको। परमात्मा कहते हैं मालिक बन के सबको राय देते रहो। जैसे प्रसाद बांटते हैं वैसे राय बांटनी चाहिए। लेकिन जब हम किसी को प्रसाद देते हैं, बाद में उसकी चॉइस होती है।
हम प्रसाद कैसे देते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रसाद है तो हम देते रहते हैं। लेने वाले के पास चॉइस होती है। लेने वाला क्या क्या कर सकता है? लेने वाला क्या क्या कर सकता है? तुरंत खा सकता है। मतलब आपने राय दी, उन्होंने तुरंत कहना माना। दूसरा वो क्या कर सकता है? दूसरा वो क्या कर सकता है? वो रख सकता है कि अभी नहीं खाना है मुझे, लेकिन मैं खाऊंगा जरूर। तो कभी कभी हम राय देते हैं, वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उसको, लेकिन वो करते रखें, यहाँ रख दिया प्रसाद, कभी ना कभी एग्जीक्यूट होगा। तीसरा वो क्या कर सकते हैं प्रसाद को? तो भी अच्छा है, कुछ रॉन्ग? अगर प्रसाद उन्होंने नहीं खाया, किसी और के पास दिया तो अच्छा अच्छा। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैंने अभी दिया, इसने खाया क्यों नहीं? और उस बात पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैंने आपको कहा, आपने कहना माना क्यों नहीं? और फिर जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी जो सामने वाले तक पहुंचती है, उसके बाद तो उसने अगर प्रसाद खाना भी था तो भी वो आइडिया ड्रॉप कर देता है। तो प्रसाद हमारे पास है। प्रसाद मतलब ब्लेसिंग्स देनी है। वो प्रसाद हमें क्या करना है? सबको देते जाना है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना वो तुरंत स्वीकार करें, तुरंत कहना माने, वी हैव टू रिमेंबर एवरीवन इज अ सोल ऑन अ जर्नी। हम कहते नहीं, बच्चा है, कहना मानना चाहिए। काम पर हम कहते वो जूनियर है, कहना मानना चाहिए। वो आत्मा है, सोल ऑन अ जर्नी। एंड सोल ऑन अ जर्नी मतलब आज वो इस शरीर में है। देखो अभी बहन ने कहा 28, इसका मतलब 28 ईयर्स से वो कहाँ है? 28 ईयर्स से कहाँ है? इस बॉडी में है। इससे पहले कहाँ थे? पता है, एक अलग बॉडी में। 28 ईयर्स पहले वो कहाँ थे? एक अलग कॉस्ट्यूम में, अलग पेरेंट्स, अलग फैमिली, अलग सिचुएशंस। 100 ईयर्स वो उसमें थे। उससे पहले वो कहाँ थे? और उससे पहले वो कहाँ थे? और उससे पहले वो कहाँ थे? इतनी लंबी जर्नी होती है हर आत्मा की। और उतनी लंबी जर्नी पर हर आत्मा इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स करके वो अब इस कॉस्ट्यूम में होते हैं। दिस इज लाइक अ CD विद सो मेनी सॉन्ग्स रिकॉर्डेड। और फिर 2 CD की एक दिन शादी होती है। मतलब एक आत्मा और दूसरी आत्मा ने भी इकट्ठे रहना है। और वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आप ऐसे कैसे? तो आप ऐसे कैसे? क्योंकि हम दोनों के गाने कैसे होते हैं? थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हर एक आत्मा के गाने डिफरेंट ही होंगे। और हमें ये नहीं पता है कि कौन पास्ट में क्या क्या देख कर आया है। सो लोगों से एक्सपेक्टेशन में, लोगों के साथ कंपैशन कि हाँ ये इसका कोई पास्ट का संस्कार, कोई पास्ट का कर्म ये है। लेकिन आप कहते हैं ये ऐसे क्यों नहीं? कुछ महीने पहले आपके स्टेट में कुछ लोग हॉलिडे पे गए थे और वो बहुत एंजॉय कर रहे थे वो इवनिंग, और सडनली वो ब्रिज हिला। आप इसको विजुअलाइज करिए कभी सीट को कि स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती है। इतने हैप्पी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंड विद इन 1 मिनट एवरीथिंग चेंजेस। और फिर विजुअल क्या क्रिएट होता है आत्मा के सामने? एवरीथिंग इज फिनिशिंग, एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग। उस समय पर उसने किसी को, अपने फैमिली मेंबर को, किसी ने अपने बच्चे को पकड़ने की, सेव करने की कोशिश की, वो उसके हाथ से स्लिप हो गया। ये भी रिकॉर्ड हो गया कि सब रिकॉर्ड हुआ टर्मोइल, और उसमें वो आत्मा ने भी शरीर छोड़ा। और फिर वो आत्मा आके गर्भ में प्रवेश किया, एक बच्चा बन गया। वो बच्चा आज बड़ा हो गया, तो उसके पास संस्कार कौन सा रिकॉर्डेड है? फियर का संस्कार रिकॉर्डेड है, इनसिक्योरिटी का संस्कार रिकॉर्डेड है, फियर ऑफ लूजिंग पीपल का संस्कार रिकॉर्डेड है। कितने सारे संस्कार रिकॉर्डेड हैं, लेकिन हम उनको देखते और बोलते आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उसको खुद नहीं पता कि क्या हुआ था, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ था, लेकिन जो हुआ था उसका ट्रॉमा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जब हमें किसी का कोई ऐसा संस्कार दिखाई देता है, हमें उसके संस्कार पे क्वेश्चन मार्क नहीं करना, हमें और ही कंपैशन से उनके संस्कार की क्या करनी है? हीलिंग करनी है। तो आज से दूसरा हम लोग हर एक को दुआएं देनी। दुआएं मतलब जो उनके अंदर संस्कार दिखाई दे रहे हैं उसी के बारे में क्यों ऐसे, क्यों ऐसे, क्यों ऐसे नहीं करना है।
परमात्मा कहता है एक पास्ट था जिसकी वजह से इनके पास ये संस्कार है, लेकिन हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, पीसफुल है, पावरफुल है, हैप्पी है, लवफुल है, नॉलेजफुल है और ब्लिसफुल है। हर आत्मा के 7 संस्कार हैं। तो हमें उनके वो पेन वाले संस्कार को नहीं देखना, हमें उनको उस दुआ देनी है कि आप पावरफुल आत्मा हैं, आप पीसफुल आत्मा हैं, आप हैप्पी हैं, आप वाइज हैं। ये बोल बोल के हमें उनके वो दर्द वाले संस्कार को भी क्या कर देना है, हील कर देना है। लेकिन हम सब क्या बोलते हैं, आप ऐसे कैसे, वाई यू सो इनसिक्योर, वाई आर यू नॉट ट्रस्टिंग मी, तुमको डर क्यों लग रहा है। और सामने वाले का वो वाला संस्कार क्या होता जाता है, फिर और बढ़ता जाता है। तो हम एक्चुअली उनके दर्द को और बढ़ाते हैं। तो सेवा, सेवा मतलब खुद को समझना, खुद के संस्कारों को समझना। खुद को समझ लिया तो दूसरों को समझना बहुत इजी, सरल, सहज हो जाता है। और जो दूसरों को समझ लिया तो उनको दुआएं देकर उनके वो वाले घाव को भी क्या कर देना, हील कर देना। लेकिन इसके लिए एक ही प्रैक्टिस है कि सारा दिन जीवन जीने का तरीका, आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल, शिफ्टिंग फ्रॉम ईगो कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। ईगो कॉन्शियसनेस एनर्जी ऐसी होती है और सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो सेवा मतलब पहले सोल कॉन्शियसनेस, सेवा मतलब I am a pure soul, I am a powerful soul, I am a happy soul, I am a wise soul, I am a blissful soul, and because I am, so I give. और ये जो ट्रांजिशन इस समय चल रहा है, इसमें तो पूरी सृष्टि पर ये ट्रांजिशन शिफ्ट होने वाला है। तो जो अज्ञान में है वो ऐसे जी रहे हैं, और जो जागेंगे अब वो कैसे जीना शुरू करेंगे, ऐसे जी। तो 2 तरह के लोग सृष्टि पर अब रहेंगे, ऐसे और ऐसे। ऐसे वाले ज़्यादा होंगे, और जो ऐसे वाले होंगे उनकी डे बाय डे बैटरी और क्या होने वाली है। हमें लगता है जो देता है उसका खत्म होता है, ये एनर्जी ऑपोजिट है। जो जितना देगा उसकी बैटरी क्या होने लगेगी, और बढ़ती जाएगी। नेचुरल है। अभी आपके साथ कोई गलत बिहेव करे और आप स्थिरता से उसके साथ बात करें, आप रिएक्ट नहीं करें। जैसे ही रिएक्ट की बैटरी क्या होगी, घटेगी। स्थिर रहे, उसको समझा, डायरेक्शन भी देना है, असर्टिवली भी बोलना है, डिसिप्लिन भी करना है, रिएक्टिव नहीं होना है, रिएक्टिव नहीं होना है। जैसे आप ये करेंगे आपकी बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। अब क्योंकि आपने उस तरह से उसके साथ बात की है, उसके मन की शक्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स की एनर्जी पहुंचेगी, आपकी शक्ति क्या होगी, और बढ़ेगी। इसीलिए जितना जो सेवा करते हैं उतना उनको दुआएं मिलती हैं। दुआएं मतलब सामने वाले की शक्ति बढ़ती है, और जितना दुआएं मिलती है उतनी हमारी बैटरी क्या होती है। तो जीवन का एक लक्ष्य बनाएं कि हमारा हर कर्म ऐसा हो कि हमारे से सबको अच्छी वाइब्रेशन जाए, और ऑटोमेटिकली सबसे हमारे पास वाइब्रेशन आए, तो ऑटोमेटिकली आत्मा रूपी बैटरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ऐसे करते करते ये सृष्टि एक ट्रांजिशन से गुजर जाएगी। स्वास्तिक ड्रॉ करें इस समय मन में, दिखाई देता है स्वास्तिक का सिंबल। 4 भाग है, 4 भाग है, और उसको कहा ही जाता है स्वास्तिक, अर्थात स्व का अस्तित्व। मतलब ये मेरे अस्तित्व की कहानी है ये सिंबल। वो 4 भाग कैसे हैं, 1, पहला हाथ ऐसे है, दूसरा हाथ कैसे है, डाउन, और तीसरा हाथ कैसे है, ऐसे, और चौथा हाथ कैसे है, ऐसे। सो 1, 2, 3 and 4 करिए एक बार। 1, 2, 3 and 4। ये 4 भाग समय का चक्र है, जिसको काल चक्र कहते हैं। पहला भाग क्या कर रहे हैं हम, पहले भाग में हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। इसको सत्युग कहा जाता है, और सत्युग में देने वाली आत्माएं रहती हैं, जिनको देवी देवताएं कहा जाता है। हिंदू धर्म नहीं, देवी देवताएं,
जिसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, मतलब पूरी सृष्टि, मतलब पूरी कम्युनिटी ही डिवाइन सोर्स। ऐसे फिर नेक्स्ट युग कौन सा है? सतयुग के बाद क्या आएगा? त्रेता युग आएगा। तो देना क्या हुआ? थोड़ा सा कम। फिर तीसरा युग आया, द्वापर युग, क्योंकि द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियस, ईगो कॉन्शियस शुरू हो गए। सतयुग, त्रेता युग, सोल कॉन्शियस, द्वापर युग। द्वापर युग में सृष्टि पर हर धर्म स्थापक आए, इब्राहिम, मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर, हर एक धर्म स्थापक ने आकर क्या सिखाया? किसी ने कहा शांति चाहिए, किसी प्रॉफिट ने आकर कहा शांति चाहिए, उन्होंने क्या कहा? पीस हमारी नेचर है। तो उन्होंने हमें अपना धर्म सिखाया। धर्म किसका था? आत्मा का धर्म। और आत्मा का धर्म क्या है? शांति, प्यार, खुशी, सुख। ये आत्मा का धर्म है। धर्म मतलब आत्मा की क्वालिटी। और हमें आत्मा के धर्म को कर्म में लाना है। लेकिन हम उनकी टीचिंग से जुड़ने के बजाय हम टीचर से जुड़ गए। अगर हम टीचिंग से जुड़ते तो हम सारे कैसे होते आज? हम सारे कैसे होते आज? यूनाइटेड होते। हम टीचर से जुड़ गए, हम सारे कैसे हो गए? डिवाइड हो गए। रिलीजन डिवाइड करने के लिए नहीं आया था, रिलीजन यूनाइट करने के लिए आया था। तो हम अपने धर्म को कर्म में नहीं लाए, हम अपने धर्म को धर्म में भी नहीं यूज कर रहे। फिर एक रिलीजन में आगे डिवाइड, मतलब इतना डिवीजन 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 होता गया, इतना डिवीजन कि आज हम धर्म के नाम पे लड़ भी सकते हैं। वो लड़ना सिखाने आए थे, वो लड़ना सिखा। दिस इज हाउ वी डिड नॉट नरिश द सीड। और ऐसे करते करते हम चौथे युग में आ गए। वो युग कैसा है? हाथ। चौथा युग कैसा है? हाथ ऐसे। इस युग को क्या बोलेंगे? कलयुग। अभी हम कहाँ पहुंचे? अभी हम कौन से युग में? तीनों में से अब हम घोर कलयुग में हैं। और इसलिए अगर आप देखो एवरी ईयर आत्मा की शक्ति क्या होती जा रही है? और कम और कम और कम होती जा रही है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पहला हाथ कैसे था? 1 2 3 4। अब इसके बाद कौन सा हाथ है? इसके बाद कौन सा हाथ है? इसके बाद ऐसा है। ये ट्रांजिशन अब होने वाला है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, घोर रात्रि। घोर रात्रि के बाद ये ट्रांजिशन अभी सृष्टि पर होगा। लेकिन उसके लिए कलयुग और नीचे जाएगा और कलेश बढ़ते जाएंगे सृष्टि के ऊपर। और जो अपनी एनर्जाइजिंग नहीं शुरू करेंगे वो और क्या होते जाएंगे? डिप्लीट होते जाएंगे। तो बहुत सारे लोग वो करेंगे और कुछ लोग किसकी तैयारी करेंगे? तो वो सत्युग को लाने के लिए सिर्फ एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट करनी है, ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस से देना। देना, क्योंकि सत्युग मतलब देना। और देना मतलब सिर्फ चीज़ें नहीं, देना मतलब वाइब्रेशन, एनर्जी में देना। तो हमें कौन से साइड पर होना है? कलयुग वाली साइड पर या सत्युग वाली साइड पर? कौन सी वाली साइड पर है? पक्का? कौन कौन रेडी है सत्युग बनाने के लिए? वेरी गुड। अभी हम बाहर जाएंगे इधर हॉल से। हाँ बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। लेकिन याद रखना कि जहाँ आप बाहर जाएंगे, अभी ऑफिस जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, इवन सड़क पर अपनी गाड़ी चलाएंगे, बाकियों ने नहीं चूज किया सत्युग, हमने चूज किया है। द गेम स्टार्ट्स नाउ। कौन सी गेम स्टार्ट होती है? वो कलयुग संस्कार से बिहेव करेंगे। और हमें कौन से संस्कार से बिहेव करना है? इस तरह से सत्युग क्रिएट होता है। तो सत्युग पहले कहाँ क्रिएट होता है? यहाँ, कि मन स्वर्ग बन जाता है। दूसरा सत्युग कहाँ क्रिएट होता है? घर में। तो कहते हैं घर स्वर्ग बन जाता है। तो सत्युगी संस्कार बनाकर पहले यहाँ चेंज आता है, फिर अपने एनर्जी सर्कल में चेंज आता है, और फिर बहुत जल्दी सृष्टि स्वर्ग बननी है। ये तो होना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो होना ही है। लेकिन ये जो टाइम अभी चल रहा है, ये बहुत क्रूशियल चल रहा है कि हमने दोनों में से कौन सी साइड पर होना है, क्योंकि तीसरी कोई साइड नहीं है।
देयर इज नथिंग न्यूट्रल एनी मोर ना. न्यूट्रल पे आप रह नहीं सकते. आप स्लोप जब बढ़ जाती है ना, तो या तो ऊपर जाना होगा या पीछे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे. रुकने वाली प्लेस बची नहीं है, क्योंकि नीचे इतना हैवी एनर्जी है कि वो हमें नीचे खींच लेता है. तो इसलिए आज डिसाइड करें कि हमने अपने आप को क्या करना है. क्या करना है? हमने अपने आप को एनर्जाइज करके, आत्मा को पावरफुल बनाकर, देने वाले संस्कार क्रिएट करके हमें अपनी जीवन को, अपने घर को और सृष्टि को सतयुग बनाना ही बनाना है. क्योंकि सतयुग तो आना ही आना है, वो तो आना ही है. हम चूज करें या नहीं करें, हम लेकिन उसको लाने का हिस्सा बने या ना बने, ये हमारा कर्म. राइट? रेडी है? तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा होना है? सतयुग बनाना है. सतयुग बनाना है. कंप्लीट परमानेंट प्रोजेक्ट है कि सतयुग बनाना है. दिस इज सर्टेन. और उसके लिए सिर्फ क्या करना है, क्योंकि देने के लिए पहले कमाना पड़ता है ना. आपने रोटरी में अगर प्रोजेक्ट करना है तो आपको पैसे चाहिए. कोई भी प्रोजेक्ट आप खरीद नहीं सकते, कोई सामान, कोई मशीन, लेकिन पैसे कमाने पड़ते हैं. कमाएंगे तब तो सबकी सेवा करेंगे ना. इसी तरह सबको प्यार, खुशी, शांति देने के लिए पहले कमानी पड़ती है. तो आज की प्रतिज्ञा कि रोज का आधा पौना घंटा अपने लिए रखना शुरू करना है. बैटरी को चार्ज करे बिना बैटरी दूसरों को नहीं दे सकती है. रेडी है निकालने के लिए? रेडी है निकालने के लिए? शुरू में टाइम निकालना पड़ता है. राइट? फिर थोड़े दिन के बाद कितने, एक बार खड़े हो जाओ सामने सबके, कितने दिन में चेंज आया आपके अंदर? 10 days. Today is how I met her. How I met her, March 27th or 25th something, I was in Ahmedabad. And I was returning back to Delhi, Indigo flight. I sat on my seat in the first row. Her duty was getting over. She's the air hostess on the flight. Her duty was getting over. She was just about to leave. And it is the first time I've experienced कि फ्लाइट में बोर्ड होने के बाद एयर होस्टेस जा रही है, नई वाली आ रही है. ऐसे तो कभी होता ही नहीं है, हमेशा एयर होस्टेस पहले ही होती है हमारे पहुंचने से पहले. तो उस दिन ये इसके लिए हुआ होगा ये सारा कुछ. एंड जस्ट ये निकल रही थी, मैं बैठ गई. हम 1 मिनट से कम के लिए मिले होंगे. और इस बहन ने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसे हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है. टाइम भी नहीं था क्योंकि इसको तो जाना था. मैंने एक फ़ोन नंबर दिया, मैंने बोला आप मेडिटेशन स्टार्ट करो सीखो. बट शी टुक इट अप and she returned, and after a few days when her duty was back in the city, she called up the center. Now she is going every day. In 10 days she has seen a change in herself. तो 10 days इसका मतलब है कि हम ये सारी जो यहाँ लेकर चलते हैं ना, जिसको हमें लगता है वो ये तो जीवन का हिस्सा है, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये एक्चुअली कुछ दिनों में ठीक हो जाता है. महीनों में नहीं, कुछ दिनों में. It is the simplest place to heal. It is the simplest place to strengthen. लेकिन हम उसके लिए पहला कदम लेते नहीं. हम कहते टाइम नहीं है. तो ये अपने आप के साथ बहुत बड़ा, ये अपने आप के साथ बहुत बड़ा धोखा है. तो आज से हम आधा घंटा रखेंगे जो दिखाई नहीं देता है उसके लिए. और जब इसको रोज आधा घंटा नरिश करेंगे, शुरू में लगेगा कि मुझे आधा पौना घंटा निकालना पड़ रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं ना, सीड हेल्दी हो जाएगा तो वृक्ष पर कितना काम करना पड़ेगा उसके बाद. तो एक्चुअली थोड़े टाइम के बाद हमारे पास टाइम ज़्यादा आ जाता है. डॉक्टर अंकित कहाँ गए? खड़े हो जाओ एक मिनट. अब ये डॉक्टर हैं, आपको कितने साल हुए मेडिटेशन करते हुए? 12 साल. अब बैठो. अब जब ये पहली बार आए होंगे ना, तो पता क्या हुआ होगा, ये बोले होंगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी प्रैक्टिस इतनी. किसी ने बोला होगा बस एक आके देखो. शुरू में टाइम निकालना पड़ता है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको इतना काम, तो शुरू में टाइम निकालना पड़ता है. लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपका काम भी बढ़ता जाता है, क्योंकि संस्कार जितने अच्छे होते जाते हैं ना, काम और बढ़ता जाता है उसके बाद. और उसके बाद आज इनके पास इतना टाइम है कि ये अननोन लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं. कहाँ से आया ये टाइम इनके पास? ये टाइम आया है इससे. तो पहले अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं, अपने को भी संभाल रहे हैं, अपना हॉस्पिटल भी संभाल रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, अब इस तरह की सेवा भी कर रहे हैं. क्योंकि जब आप बीज को पानी देना शुरू करते हैं तो थोड़े दिन में हम कहते हैं काम खत्म हो गया, अब बताओ अब क्या करना है.
बिकॉज वी वर ओनली वेस्टिंग टाइम ट्राइंग टू वाटर द ट्री. जैसे ही बीज को पानी देना शुरू करते हैं, काम कम नहीं, काम बढ़ जाता है, लेकिन टाइम उतना ज़्यादा बच जाता है क्योंकि हम बीज को पानी दे रहे हैं. तो ये आधा पौना घंटा शुरू में निकालना पड़ता है 1 महीने के लिए, 1 मंथ. 1 मंथ के अंदर आपके रूट्स क्या होने लगेंगे? स्ट्रेंथन. आपकी ट्री होने लगेगी स्ट्रॉन्ग. और आपको लगेगा हम टाइम निकाल नहीं रहे, हमारा टाइम क्या होता जा रहा है? बच जा रहा है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ कैसे हो गए? शांत, peaceful and happy, not while meditating, but peaceful and happy even in a crisis. Even in a crisis. इतनी प्रेपरेशन हो जाती है माइंड की कि अगर क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर भी शरीर छोड़ता है, परिवार बिल्कुल स्थिर, एकदम स्थिर. दुआएं देकर, मेडिटेशन देख करके प्यार से उनकी विदाई करते हैं. रो के नहीं भेजते कभी किसी को. क्यों? क्योंकि जीवन की छोटी छोटी सिचुएशंस में स्थिर. ये जब बड़ी बात आती है तो भी स्थिर. तो जीते हुए भी स्थिर, खुद शरीर छोड़ते हैं तो भी स्थिर. दैट इज आर्ट ऑफ डाइंग. एंड आर्ट ऑफ डाइंग टीचेस अस आर्ट ऑफ लिविंग. कि जीवन कैसा जीना है. हर घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है. अपने कर्म और संस्कार पर अटेंशन, वही एक चीज़ है जो हमारे साथ चलने वाली है. तो हम जहाँ जहाँ भी रहते हैं अहमदाबाद में, हमारे 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर सेंटर है. राइट. मेजोरिटी आप सेंटर को जानते भी होंगे. नहीं भी आते जाते देखेंगे तो एक येलो एंड रेड फ्लैग दिखेगा ऊपर सेंटर के. और अदरवाइज जस्ट गूगल करेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज अहमदाबाद, आपके पास सारे सेंटर के एड्रेस आ जाएंगे. और वो आप अपने नियरेस्ट सेंटर पर जाकर, दीदियाँ होती हैं, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा आपको ऑनलाइन. आप कॉल करके अपना दिन, अपना टाइम फिक्स कीजिए. राइट है ना. जब आप फ्री होते हो तब दीदी मिलती है ना आपको से. और वो फ्लाइट पे है, किसी दिन कोई टाइम पे फ्री होती है, किसी दिन कोई टाइम पे फ्री होती है. वो जब फ्री होती है उसके हिसाब से उसको सुनाया जाता है. इससे ज़्यादा सेवा कौन कैसे कर सकता है. लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है? उस सेवा को यूज़ करना है, अपने अंदर भर के फिर विश्व की सेवा करनी, फिर विश्व की सेवा करनी. तो 4-5 दिन के लिए 45 मिनट्स निकालकर आप अपने नज़दीक के सेंटर पे जाकर ये मेडिटेशन सीखिए. निकाल सकते हैं 4-5 दिन? निकाल सकते हैं. कौन कौन रेडी निकालने के लिए? निकाल सकते हैं. जल्दी निकाल लेना, अगले हफ्ते तक नहीं छोड़ना. तुरंत दान. थोड़े दिन के बाद टाइम नहीं, वापस उस एनर्जी की हवा में चले जाएंगे. तुरंत करें. बीज को पानी देना शुरू करें. तो जस्ट फ़ोन करें, दीदियों से बात करें और अपना डेट और टाइम फिक्स करके हम मेडिटेशन सीखें. वो 1-on-1 सिखाया जाता है. कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होना है उसके लिए. तो जो टाइम आपको सूट करे, जो दिन आपको सूट करे, सभी सेवा पर हैं. सभी इकट्ठे मिलकर सृष्टि की सेवा करके सत्यों की दुनिया. तो आपको नहीं लगता सब लोग कितने दर्द में हैं? दर्द में या नहीं दर्द में? तो उन सब की सेवा करनी है. तो निकालेंगे 4-5 दिन. यस, हर एक निकालेगा 4-5 दिन. पक्की बात है, करना ही है. नहीं तो हम वो वाली साइड पर होंगे. और जाना कौन सा है? ये वाली साइड पर जाना. हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और फिर अटेंशन को यहाँ लेकर आइए. भाई साहब 1 मिनट खड़े हुए पीछे. हाँ, अभी जो महादेव नगर से हम आए ना इकट्ठे IT रिट्रीट के बाद, हाँ खड़े हो जाइए. कितने दिन हुए सेंटर पे जाके हुए? कितने? 15 डेज. चेंज आया? और इतना बड़ा चेंज आया जो सोचा भी नहीं था कि ये चेंज हो सकता है. जिस चीज़ को राइट ऑफ कर दिया था कि लाइफ में ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, 15 डेज के अंदर चेंज हुई है. इट इज़ सो सिंपल. और ये सब आपके ही बीच के लोग हैं. आप रुक कर इनसे किसी से भी बात कर सकते हैं. इट मीन्स इट डज नॉट टेक मंथ्स एंड ईयर्स. इट ओनली टेक्स a few days. A few days to heal our pain. A few days to change our sanskar. That's all it means. Thank you so much. शुक्रिया. यहाँ पर फिर से अटेंशन.
इसको बार बार करना है आज सारा दिन में। चमकता हुआ सितारा, एनर्जी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peaceful soul. Always peaceful. It's my nature. सर्वशक्तिवान परमात्मा का मैं बच्चा, वो शांति का सागर है, मैं उसका बच्चा शांत स्वरूप हूँ। सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ है, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। सबको दुआएं देने वाली, हर कर्म से दुआएं कमाने वाली, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली सत्य की आत्मा हूँ। मेरा अटेंशन, मेरे कर्म, मेरे संस्कार, मेरे कर्म, मेरे संस्कार, यही परमानेंट है, यही मेरी प्रॉपर्टी है, यही मेरी पर्सनालिटी है। मेरे कर्म, मेरे संस्कार, मैं सत्य की आत्मा, सबको देने वाली आत्मा, नेचुरल रूप से सदा शांत, स्थिर, पीसफुल। अगले 10 मिनट्स तक जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते या अपने अपने काम के स्थान पर नहीं पहुंच जाते, हम साइलेंस में रहेंगे, मौन में। ये मौन हमारी शक्ति को बढ़ाता है और सब कुछ जो हमने अभी अंदर मंथन किया है उसको वो ड्यूक डाल देता है सबकॉन्शियस में। तो while we walk out, while we drive home, just 10-15 minutes साइलेंस में रहेंगे और फिर आज ही सेंटर पर बात करके हम मेडिटेशन सीखने का दिन और टाइम फाइनल करेंगे। Please wait, please sit down. I request Dr. Vidula and myself to give the memento to Nitish Rai. We can have a group photograph so you can all come here and